بلیٹن کا آغاز کرے اور سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ 90 روز میں انتخابات سے متعلق درخواست مال خان نے اختلاف کیا۔ آئین عام انتخابات سے متعلق وقت مقرر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ انتخابات دونوں صوبوں میں 90 روز میں ہونا ہے۔ فیصلے کے متن میں یہ کہا گیا اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات ہونا لازم ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 14 اور کے پی کی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے پر 48 گھنٹے میں خود تحلیل ہوئی۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ کا اعلان بھی خود کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے دی گئی تاریخ پنجاب پر لاگو ہوگی، یہ بھی بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ کے پی میں صدر کی دی گئی تاریخ کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن فوری صدر مملکت سے مشاورت کرے اور 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت سے تاریخ بدلی بھی جا سکتی ہے۔ مزید فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائیں۔ تمام متعلقہ ادارے الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا ہے۔ اختلافی نوٹ میں یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ منظور الہی اور بے نظیر کیس کے مطابق از خود نوٹس لینا نہیں بنتا۔ ہائی کورٹس میں اسی طرح کا کیس زیر سماعت ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے۔ 90 روز میں انتخابات کرانے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے اختلافی نوٹ میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان کا بھی رد عمل۔ عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان نے جیل بھرو تحریک کو معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خادم کمبو سے۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ عثمان پارک کے باہر موجود ہوں۔ گزشتہ روز جو کیمپس یہاں سے ہٹائے جا رہے تھے وہ دوبارہ گرین بیلٹس کے اوپر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جو صوبے بھر کے اندر جیل بھرو تحریک شروع کی ہوئی تھی اس کو معطل کر دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جیل بھرو تحریک کو معطل کیا گیا ہے۔ فیصلہ آباد میں آج جو گرفتاریاں ہونی تھیں ان گرفتاریوں کو روک کر اب فیصلہ آباد میں جشن اور جلسہ جو ہے وہ کیا جائے گا، جبکہ عمران خان اس وقت عثمان پارک میں اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر انتخابی مہم جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اب شروع کی جائے گی اور وہ چلائی جائے گی، جبکہ اس وقت عثمان پارک کے اندر اہم ملاقاتیں آج عمران خان کریں گے۔ خاص طور پہ امریکہ سے جو وفد آیا ہوا ہے، کیلیفورنیا کی قانون ساز اسمبلی کے جو اراکین ہیں اور پاکستانی نژاد امریکی جو افراد پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد سینئر قیادت کے ساتھ بھی عمران خان ملاقات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی، جو تاریخ ہے صدر کی جانب سے دی گئی، صدر پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ جیل بھرو تحریک کے تحت جو کارکنان اور رہنما جیلوں میں موجود ہیں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے بھی جو ہے مشاورت کی جائے گی۔ عمران خان آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے سینئر قیادت کو ہدایات جاری کریں گے۔ عثمان خادم، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایپکا ملازمین کا مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی بڑی تعداد کی چیئرنگ کراس پر نعرے بازی۔ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی۔ مظاہرین کی جانب سے مزید یہ مطالبہ کیا گیا کہ مہنگائی میں فوری کمی کی جائے۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توقیر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایپکا ملازمین کا چیئرنگ کراس کے باہر احتجاجی مظاہرہ جو ہے جاری ہے۔ ایپکا ملازمین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جو ہے وہ تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے یا پھر جو ہے وہ مہنگائی میں فی الفور جو ہے وہ کمی لائی جائے۔ اسی حساب سے یہاں پر بڑی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ کچھ مظاہرین بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا کیا معاملہ ہے، نیچے آ جائیں ذرا ایک منٹ، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ ایپکا ملازمین کا مظاہرہ جاری ہے، مطالبات آپ کے کیا ہیں؟ آج پورے پاکستان میں 128 اضلاع کی طرح آج لاہور میں بھی یہاں پر احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے مہنگائی کے خلاف۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ غربت کی جس لکیر سے آگے نکل چکے ہیں اور فاقہ کشیوں اور خودکشیوں پر مجبور ہیں، لیکن حکومت ہے کہ اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی لڑائیاں لڑ رہی اور غریب سے غریب تر اور سفید پوش خاص کر سفید کالر جو تھا وہ تو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا۔ یہ ملازمین پیشہ مر کے رہ گیا ہے۔ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، ان کی اجرت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ حکمرانوں کے گروبانوں تک پہنچیں گے۔ اب
बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन है उनका मुतालबा है कि इस महंगाई के दौर के अंदर जो है वो तनख्वाहों में फुलफोर जो है वो इजाफा किया जाए ताकि इस मामला इस महंगाई के दौर पैदा की जाए। तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 265 रुपये से भी तजावुज कर गया। डॉलर 261 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 265 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। डॉलर की परवाज बढ़ती चली जा रही है। वजूहात क्या हैं, तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और सुबह से ही इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने नजर आ रहा है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर ट्रेडिंग डॉलर जो है वो 4 रुपए है वो मजीद महंगा हो गया है। उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 261 रुपये 50 पैसे से तजावुज करके 265 रुपये 50 पैसे पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक तलब पर 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर है वो 5 रुपये 58 पैसे है वो महंगा हो चुका है। और दरामदी बिल का माल ये न होने पर रुपए पर दबाव है वो देखा जा रहा है। जबकि इस बार से माहिर यही कहना है कि IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से भी रुपए पर दबाव है वो नजर आ रहा है। और आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज था और तीसरे रोज के आगाज के साथ ही इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने नजर आया। इस वक्त 4 का इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 265 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। सईद, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल कॉलेजेस में नया निसाब लागू, मगर मेडिकल एजुकेशन की फैकल्टी का फुकदान है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल एजुकेशन की फैकल्टी का फुकदान बरकरार है। डॉक्टर निगहत नदीम का इस हवाले से कहना है कि तिब्बी तालीम को फ़रोग देने में मेडिकल एजुकेशन का कलीदी किरदार है। मज़ीद उनका क्या कहना है जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जिसमें नया निसाब आज से लागू कर दिया गया और स्टूडेंट्स जो हैं उनको नए निसाब के तहत जो है वो अब इस साल से पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर निगहत नदीम जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मारूफ जो है वो मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं और इन LMDC में जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मेडिकल एजुकेशन क्योंकि वैसे तो ओवरऑल ही जो पढ़ाया जाता है उसको मेडिकल एजुकेशन ही कहा जाता है, तो ये डिपार्टमेंट अलग से कायम होना, इसकी अहमियत क्या है, क्यों ये जो है वो यहाँ पे है और पूरी दुनिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका मुझे दिया है। मेडिकल एजुकेशन तो आप MBBS प्रोग्राम को ऐसा कहते ही हैं लोग, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब कहा जाता है तो उसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा निसाब अंडर ग्रेड का है उसको लेके कैसे चलना है। 40-50 से ज़्यादा साल हो गए कि वेस्ट में, क्योंकि अक्सर होता है कि मगरबी जो अतवार बदलते हैं तो वो हमारी तरफ भी आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये अहमियत समझी कि इसको सारे को अंडर ग्रेड जो सिस्टम चलाना है उसके लिए हमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जो शेडोज़ में उसके पीछे बैठ के फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क इस तरह के करिकुलम बनता है। जब करिकुलम बनाया जाता है अंडर ग्रेड का तो उसके बहुत सारे आप समझ लें डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसके अंदर डालनी चलती हैं। जैसे कि हमारा जो भी सिलेबस पढ़ाना है, मवाद होगा वो होगा, उसको कैसे लेके चलना है, उसको पढ़ाना कैसे है, लेक्चर में पढ़ाना है, प्रैक्टिकल में पढ़ाना है, फिर उसके बाद उसको असेस कैसे करना है, स्टूडेंट से फीडबैक लेनी है, टीचर से फीडबैक लेनी है, फिर सारे प्रोग्राम को अगर क्वालिटी देखनी है, उसकी एश्योरेंस करनी है या इसके अलावा वैल्यूएशंस करनी है, एग्ज़ाम सेल बनाना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इतनी आगे तक अब चली गई हैं क्योंकि हमारा आज का स्टूडेंट बदल गया, हमारा टीचर बदल गया, डिजिटलाइजेशन इतनी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो ये समझा गया बाहर के मुल्कों में कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए जो ये सारा का फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर बैठ के देखे और सोचे। उनकी ये सोच थी बाहर के मुल्कों में, जो ये निसाब में इतने ज़्यादा आपको बाहर के मुल्कों में नज़र आता है कि चेंजेस आते जा रहे हैं, वही चेंजेस अब हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ज़रूरत है कि इस डिपार्टमेंट को इन सारे चेंजेस को लेके चलने के लिए एक कोई इनकी अपनी फैकल्टी जो कि PMDC में भी है कि एक बंदा कोई मेडिकल एजुकेशन का आपका होना चाहिए डिपार्टमेंट का जो सिर्फ मेडिकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल, मेडिकल एथिक्स जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेस्ट में जो है वो जोर दिया जाता है और इसी वजह से इस जो है वो मेडिकल एजुकेशन को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन का हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होना, फैकल्टी होना भी लाजिम है ताकि निसाब को जो जदीद जो आपने खतूत पर इस्तवार किया है उसको कामयाब आगे बढ़ाया जाए। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पंजाब पुलिस में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MOU पर दस्तखत हुए। MOU चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और IG पंजाब उस्मान अनवर ने उस पर दस्तखत किए। पंजाब में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी के लिए MOU पर दस्तखत किए गए।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। ज़्यादती और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों के लिए खिलाफ मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जाएंगे। गदागरी के खात्मे के लिए सदाद गदागरी मुहिम चलाई जाएगी। चेयरपर्सन सारा अहमद की जानिब से यकीनी दहानी करवाई गई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब पुलिस में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MOU पर दस्तखत हुए। MOU पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद और IG पंजाब उस्मान अनवर ने दस्तखत किए। पंजाब में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए MOU पर दस्तखत किए गए हैं। आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। ज़्यादती और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों के खिलाफ मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाएंगे। गदागरी के खात्मे के लिए इंसदाद गदागरी मुहिम चलाई जाएगी। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कोमल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पंजाब पुलिस के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इस मौका पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि MOU के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पंजाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। ज़्यादती और इस्तेहसाल का शिकार और गदागरी में मुलविस बच्चों के खिलाफ मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाएंगे। गदागरी का खात्मे के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब पुलिस की जानिब से इंसदाद गदागरी मुहिम चलाई जाएगी। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पंजाब पुलिस एक दूसरे को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मजीद उनका ये भी बताना था कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और भिखारी माफिया के खात्मे के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 और पुलिस हेल्पलाइन 155 राब्ता करेंगे। जी ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। कैलिफोर्निया की कानून साज असम्बली के क्रिस आर होल्डन की क़यादत में वफ्द का दौरा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कैलिफोर्निया की कानून साज असम्बली के वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में कैलिफोर्निया का कानून साज असम्बली के अरकान और हुकाम भी शामिल थे। कैसर खोकर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी कैसर। जी बिल्कुल, कैलिफोर्निया की कानून साज असम्बली के एक वफद ने सरकारी तौर पर जो है सिविल सेक्रेटरी का दौरा किया है, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब दाहद अख्तर जमान ने वफद का इस्तकबाल किया है और उन्हें पंजाब में सरमायाकारी के माहौल के हवाले से आगाह किया। पंजाब में एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम के हवाले से आगाह किया गया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस वफद ने सिविल सेक्रेटरीट के मकबरा अनारकली का भी दौरा किया और सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया और हुकूमत पंजाब के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरे जो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर के प्रोग्राम हैं उनको सराहा और पंजाब में। शुक्रिया कैसर खोकर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।